गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्राफिकली कैसे दिखता है ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे। इट इज पैराबोलिक कर्व। आपका पैराबोला आइदर ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन a greater than 0 और ओपन टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन a less than 0। अगेन उसके ऊपर तीन कंडीशंस आए थे। इफ d greater than 0 तो आपका तो and a greater than 0 d greater than 0 you will get curve like this और उसके अंदर आपका x axis जाएगा so that you will get two different points. That points is your intersection point, that is your roots. So your roots are real and distinct. If discriminant equal to 0 and a greater than 0 curve तो ऐसे ही होगा that time you will get curve like this. Curve ये x axis let us take तो कर्व आपके x axis पर टच करके ऊपर जाएगा। इसका मतलब आपका this line become tangent line। तो जहां पे टच करेगा there alpha same as beta। Like that when graph open towards downward directions, that case a less than 0. If a greater than 0 and discriminant less than 0 तो आपका कर्व ऐसा रहेगा। x axis neither your curve touch your x axis nor cut your x axis, that's why you have no dual roots, imaginary roots। ऐसे हम डिस्कस किए थे। आज बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स आर देयर। सो ग्राफिकली तो ऑलरेडी आपको ग्राफ पता है। अभी रूट्स कहाँ पे रहेगा, हम एक पॉइंट को फिक्स करेंगे तो कैसे क्या क्या कंडीशंस आ सकता है, दैट विल डिस्कस टुडे। ठीक है, चलो अभी डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। Okay, now come to location of roots. We'll discuss about location of roots. Expression रखेंगे वही f of x quadratic expression, your ax square plus bx plus c where a is not equal to 0. Here type 1 कुछ टाइप्स हम इधर डिस्कस करेंगे। If let us take not here, let alpha beta are the roots of f of x equal to 0. ये given if x1 strictly less than alpha beta, or you can call it if roots, if both the roots more than x1, this is the fixed point. Okay, तो इसमें हम क्या क्या कंडीशंस हमें मिल सकता है। व्हाट आर द कंडीशंस इफ both the roots more than x1? When I'm telling more than or less than, that means
Here roots are real. Make it note. Here roots are real. Otherwise मैं ये term use कर नहीं पाऊंगा. Otherwise I can't use this term more than less than. Okay. क्योंकि there is no comparison in between two imaginary roots or complex roots. Complex roots में और imaginary roots में हम बड़े छोटे डिस्कस कर नहीं पाते, कंपेयर कर नहीं पाते. तो when I'm telling more than or less than, definitely your roots are real roots. Your roots are real. आज roots are real, तो discriminant must be greater than equal to 0. Whether मैं टाइप 1 डिस्कस करूं कि टाइप 2 डिस्कस करूं, जो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी एक कंडीशन आपका रहेगा. ओके, D you can't write D less than 0 for this case. Okay, आगे कुछ होगा तो देखते हैं. When I'm discussing about more than or less than, that case D must be greater than 0. D less than 0 हो नहीं पाएगा. ठीक है, अब देखते हैं क्या मैं इसको हम कैसे कर सकते हैं. ड्रॉ करो आपका, ये आपका एक्स एक्सिस, इधर थोड़ा दे दो. तो आज D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका कर्व ऐसे होगा. नहीं तो ऐसे कर्व हो सकता है, और तो कुछ नहीं होगा. लेट अस टेक हियर x1, ये आपका अल्फा, एक्चुअली अल्फा मतलब अल्फा कमा 0. हाँ, ये आपका बीटा, पॉइंट रखेंगे तो बीटा कमा 0. नहीं तो आपका कर्व ऐसे हो सकता है, ऐसे होगा. नहीं तो ऐसे हो सकता है. हियर a greater than 0, here for this case a. तो हम डिस्कस कर रहे थे, if both the roots greater than x1, then what are the conditions? Your first condition is the D greater than equal to 0. ये तो पक्का. Second condition I'm telling a into f of x1 greater than. ठीक है, चेक करो. What is the f of x1? This is f of x1. So here f of x1 greater than 0. And a greater than 0. ये भी होगा आपका f of x1. इधर भी आएगा. तो a greater than 0, f of x also greater than 0. नहीं, आपका ग्राफ ओपन टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये होगा आपका f of x1. तो here f of x1 less than 0 and a less than 0, so their product greater than 0. तो a into f of x1 greater than 0, ये फर्स्ट कंडीशन, ये आपका सेकंड. समझ में आया कि नहीं? ये ठीक से समझ.
इफ ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो आपको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। अदर देन दिस टू और एक कंडीशन आएगा आपके पास, दैट कंडीशन इज द x1 लेस देन माइनस बी अपॉन 2। ये कहां से आया? वेर यू गॉट दिस कंडीशन? कोई बता पाएगा? आज x1 लेस देन अल्फा एंड x1 लेस देन बीटा, that implies 2x1 less than alpha plus beta, right? Means 2x1 less than sum of root minus b by a, तो x1 क्या आएगा? लेस देन माइनस बी बाई a। तो ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन, ये आप सेकंड, ये भी आप यूज कर सकते। समझा? तो इफ बोथ द रूट्स ग्रेटर देन फिक्स्ड वैल्यू x1, देन आपके पास ऐसे तीन कंडीशन आएगा। First of all, d greater than equal 0. When I'm telling greater than or less than, हमें imaginary, तो ये रूट्स आर रियल, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड a इंटू एफ ऑफ एक्स। आपको ग्राफ से पता चला, ऐसे ग्राफ रहेगा तो एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन 0 दे रहा है, ए भी ग्रेटर देन 0 दे रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ग्राफ आपका ओपन टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट टाइम योर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव, मतलब नेगेटिव दे रहा है, एफ ऑफ एक्स 1 लेस देन 0 एंड दैट केस आल्सो ए लेस देन 0, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 होगा। और एक बताया, एक x1 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से छोटा होगा, तो x1 स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब मुझे बताइए, सपोज x2 हियर, the roots smaller than x2, still you are getting same condition ना, f of x2 greater than 0 हो रहा है, a भी greater than 0 हो रहा है। नहीं, ऐसे ग्राफ के लिए f of x2 लेस देन 0 हो रहा है, a लेस देन 0 हो रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करेगा। बट x2 क्या होगा? x2 more than alpha, x2 more than beta, means x2 twice of x2, alpha plus beta more than alpha plus beta। तो यहाँ पे जो लेस देन कंडीशन था वो ग्रेटर देन कंडीशन हो जाएगा। ओके, आई एम राइटिंग दैट पॉइंट, that is second type, case 2, okay, better write case 1 rather than type 1 type 2, चलेगा। okay, if both the roots smaller than or less than fixed value x2, then first discriminant must be greater than equal 0, second क्या मिला था? a into f of x2 greater than 0, third condition sum of fruits x2 greater than, okay, that clear? अच्छा लगा ना?
चलो अब देखते हैं कैसे होता है यार, बाकी सब कैसे होता है। Now, if the fixed value x1 lies in between roots, पहले क्या कहते हैं, एक साइड में रखे थे, अल्फा बीटा से कम लेफ्ट में रखे थे, एक केस कहते हैं कि अल्फा बीटा के राइट साइड में रखे थे, अभी रखेंगे इन बिटवीन। इफ द फिक्स वैल्यू x1 lies in between roots, ओके, तब क्या होगा? एनी गेस? कुछ तो बताओ। और एक केस, तो ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, समवेयर इधर एक्स, ठीक है। तो हियर ए ग्रेटर देन 0, हियर ए लेस देन 0 फॉर बोथ द केसेस। टी, ये तो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लाइज इन बिटवीन टू रूट्स, मतलब रूट्स आपका रियल होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या था, फॉर दिस ये ओके, sorry, I have done one mistake here. As the question is given, x1 lies in between roots, तो डेफिनेट अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो आपका ये ग्राफ नहीं बने, गलती से बनाया था, सो यू विल नॉट गेट दिस ग्राफ। ठीक है, ये भी, ये आल्सो। तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आज इन बिटवीन और रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। आपका ग्राफ ये दो तरीके से हो सकता है। सपोज हियर x1, तो फॉर दिस ग्राफ आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, नीचे आ रहा है, तो हियर एफ ऑफ x1 लेस देन 0 एंड ए ग्रेटर देन 0। एक केस के लिए एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 एंड ए लेस देन 0,
तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a इंटू एफ ऑफ x1। तो whenever your fixed value lies in between roots, आपका ये कंडीशन d must be greater than 0 होगा and a into f of x1 less than 0। इसमें हम बोल नहीं पाएंगे कि x1 का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि x1 लेस देन बीटा बट मोर देन अल्फा, तो हमें कोई कंडीशन उसमें नहीं मिलेगा। तो दीज टू कंडीशंस आर सफिशिएंट कंडीशंस। समझ में आया ना? दिस क्लियर? व्हेन योर रूट्स लाइज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट होना चाहिए एंड रियल होना चाहिए। तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आ गया। अब मैं ये ग्राफ में देख रहा हूँ, इसका जो फंक्शनल वैल्यू नीचे जा रहा है, तो एफ ऑफ x1 ग्राफ नीचे है, तो एफ ऑफ x1 लेस देन 0 बट ए ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इफ यू कंसिडर दिस ग्राफ, for this one f of x value or f of x1 value greater than 0 but a less than 0, again their product less than 0। तो for both the cases ये दोनों कंडीशन आपको आएगा ही आएगा। दिस इज योर टाइप 3। नाउ कम टू केस 3। ओके, केस 4। नाउ हम डिस्कस करेंगे, अभी क्या था, एक पॉइंट को हम दोनों रूट के बाहर रखे थे, नहीं तो अंदर रखे थे। अभी दो केसेस रखेंगे, दो पॉइंट। तो यू नीड टू यूज इंटरवल। केस 4, if both the roots lies in between x1 comma x2, if both the roots lies in between x1 comma x2, means what? ये आपका कर्व, ये अल्फा, ये बीटा, ये आपका x1, ये आपका x2। ओके, तो आपका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। ग्राफ में भी लाइक दिस। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन, discriminant must be greater than equal to 0। Second condition, f of x1 ग्रेटर देन 0, f of x2 भी ग्रेटर देन 0। सपोज ग्राफ आपका ऐसे हुआ, तो f of x1 लेस देन 0, f of x2 also लेस देन 0। आपको क्या मिलेगा, f of x1
into f of x2 always greater than, ठीक है। और क्या, डेफिनेट योर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये दोनों के बीच में तो रहेगा। अल्फा प्लस बीटा बाय 2 should be lies in between x1 to x2, means x1 less than minus b upon 2a less than, ये भी आप यूज कर सकते हो, बट इन जनरल ये दोनों में भी आ जाएगा, बट जितने कंडीशन आप रखोगे उतना अच्छा रहेगा। ये भी रहना चाहिए, थर्ड वन रहना, समझ में आया कि नहीं? If both the roots lies in between x1 and x2, x1 x2 के अंदर आपका रूट्स रहेगा, तो आपका कंडीशंस क्या हो सकता है? पहले ग्राफ ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, दैट्स व्हाई डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल 0, लेस देन 0 का चांस ही नहीं, ओके। एंड आपका f of x1 x2 ग्रेटर देन 0 होगा, एंड alpha plus beta by 2 should be lies in between x1 and x2, means minus b by 2 lies in between x1 and x2, ठीक है। Now come to, we'll discuss next point. Now next case, what is the next case number 4, 5. If exactly one of the root lies in between x1 and x2, exactly one of the root lies in between x1 and x2. Suppose ये x1, ये x2 और ये अल्फा, नहीं तो और एक केस आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये x1, तो क्या होना चाहिए? Discriminant must be greater than 0, क्योंकि it is given exactly one of the root, ठीक है। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होना चाहिए, आपका केस ऐसे भी होगा। तो इसमें क्या आ रहा है? f of x greater than 0 and f of x2 less than 0, तो सेकंड केस आना चाहिए f of x1 into f of x2 less than 0। नहीं, एक केस रखोगे, ये नेगेटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, इसमें भी ऐसे होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो आपको ये दो कंडीशन आएगा। व्हाट आर द कंडीशन? फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन, f of x1 into f of x2 less than 0।
समझा? वन मोर कंडीशन, हम इसके प्रीवियस क्या डिस्कस किए थे? इफ अल्फा बीटा लाइज इन बिटवीन x1 x2, इफ x1 x2 लाइज इन बिटवीन अल्फा टू बीटा, वो केस में क्या होगा? ठीक है, अब उसको डिस्कस करते हैं। Next case is the if two fixed values x1 and x2 where x1 less than x2 lies in between roots alpha and beta. ठीक है, obvious alpha and less than beta. पहले ग्राफिकली एक बार चेक करो। ये आपका पहला वाला, यहाँ पे x1, इधर x2, ये अल्फा, ये बीटा, और नहीं तो s होगा, तो डिस्टिंक्ट रूट्स होगा ही होगा। तो फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सेकंड क्या होगा? यस देखो, f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 दोनों नेगेटिव दे रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे ऐसे हो रहा है। सेकंड केस, f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 ग्रेटर देन, these are substituents. Yes. बेसिकली ये सब हम प्रॉपर्टीज यूज करके हम इंटरवल सब निकालेंगे। ये सब समझ में आया ना? Based on this concept, I'll give you some questions, so try to solve. ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, need to solve this question. Okay, now discuss this question. Find all values of a, clearly A is the parameter for which 6 lies between the roots of the equation x square plus twice of a minus 3 into x plus 9 equal to 0. Clearly coefficient of x square is the 1. तो आपका ग्राफ जो होगा वो ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन होगा। आज 6 लाइज इन बिटवीन द रूट्स, तो एक तो रियल रूट्स होगा एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, अदरवाइज इट्स नॉट लाइज इन बिटवीन रूट्स। ओके, तो एक बार ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ हमेशा ट्राई करो ड्रॉ करने के लिए, सो दैट आपको प्रॉपर आइडिया मिलता जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप ड्रॉ करो। क्वेश्चन इन द 6 लाइज इन बिटवीन रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो मेरा रहेगा एंड f ऑफ 6 जो होगा वो नीचे आ जाएगा, मतलब f ऑफ 6 लेस देन 0। ठीक है, these two must be your condition. Now come to discriminant greater than 0 implies, what is the discriminant? b square means 4 times of a minus 3 का whole square minus 4ac, 4 into 9 कर देता हूँ, so that 4 4 में कैंसिल कर दूंगा,
तो 4 कैंसिल हो गया, implies a माइनस 3 का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 9 माइनस 9 ग्रेटर देन 0 implies a into a minus 6 greater than 0. तो if you use Weaver मेथड तो आपका क्या होगा, ये 0 ये 6, तो आपका 6 से आगे जाएगा नहीं तो 0 से पीछे जाएगा, मीन्स ये बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 पे ओपन होगा, ये तो हमेशा ओपन, माइनस इन्फिनिटी यूनियन और 6 टू इन्फिनिटी बोथ, ये आपका फर्स्ट कंडीशन. Then come to f of 6 also greater than 0. ये कंडीशन 1 रख देता हूँ. Also f of 6 or less than 0 implies ये हो जाएगा 36 प्लस 12 इंटू a माइनस 3 प्लस 9 लेस देन 0. 12 इंटू 3 36, ये कैंसिल हो गया. नाउ 12a प्लस 9 लेस देन 0, तो a लेस देन माइनस 3/4. तो वन सिंग माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, ये होगा चलेगा, नहीं तो ये भी होगा चलेगा, नहीं तो दोनों होगा चलेगा. सेकंड सिंग माइनस 3/4 टू कम है. ओके, तो यहाँ पे रख लो माइनस 3/4, यहाँ से बोल रहे कम है, तो कॉमन पार्ट. सो फ्रॉम 1 एंड 2, तो आपका ये जो रहेगा क्लियरली दिस पार्ट इज द कंटेन कर रहा है, कॉमन में आ रहा है, तो a लेस देन माइनस 3/4, और यू कैन राइट a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से माइनस 3/4. सो दिस इज योर आंसर. अभी ये बात समझ में आया कैसे हो रहा है? कहीं पे कुछ हुआ तो बताइए. ठीक है ना? चलो, come to next question. We'll discuss about next question.
Okay, now this is very good question. Question given: if roots of ax square minus bx plus c equal to 0, definitely is not equal to 0. अच्छा ठीक है, वो भी नहीं चाहिए. Distinct and lies in between 0 to 1. तो distinct lies in between जब 0 to 1 दिया गया, इसका मतलब roots are real. तो your first condition must be discriminant greater than 0. फिर ABC belongs to natural number, इसलिए मैंने बोला कि A is not equal to 0 का कंडीशन नहीं चाहिए. आज ABC belongs to natural number. Then find the minimum value of A plus 2B plus 3C. आज ABC belongs to natural number, तो A greater than 0 ग्राफ ऐसे ही ओपन होगा. पहले ग्राफ, कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक रफली ग्राफ ड्रॉ कर दो, फिर चेक करते हैं. तो कोई भी क्वेश्चन आता है, एक ग्राफ, रफली ग्राफ ड्रॉ कर दो. आज ABC बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो डेफिनेट आपका A ग्रेटर देन 0 आ रहा है. आपका ग्राफ ओपन टुवर्ड्स अपर डायरेक्शन. जस्ट ड्रॉ ए ग्राफ, इसके बाद देखते क्या आता है. ओके, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ग्रेटर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया. एंड योर रूट्स लाइज इन बिटवीन 0 to 1 ये दिया गया.
ठीक, और क्या आएगा? लाइज इन बिटवीन डिस्टिंक्ट लाइज, ओके। और क्या कंडीशन आ सकता है? एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और क्या कंडीशन आ सकता है? अल्फा प्लस बीटा बाय 2 लाइज इन बिटवीन 0 to 1। ठीक है, these are the conditions. So discriminant greater than 0 means b square minus 4ac greater than 0. F of 0 into f of 1. F of 0 is the c into f of 1. a minus b plus c greater than 0. अच्छा, c the natural number, तो ये वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 हो रहा है, implies आपका a plus c greater than b। ये आपका सेकंड कंडीशन। अल्फा प्लस बीटा बाय 2 means minus b by a means plus b by greater than 0 and less than 1। obvious greater than 0 होगा क्योंकि नेचुरल नंबर, तो only you have to consider less than 1 implies b less than 2। ठीक है, तो these are the conditions you got। अब चेक करते हैं क्या क्या वैल्यूज आ सकता है, क्या क्या कंडीशंस मिला। b square greater than 4ac, a plus c greater than b and b less than 2। ये सब कंडीशन मिला। तो बिकॉज ऑफ नेचुरल नंबर, तो 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये जो वैल्यू रहेगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो b हम 2 ले नहीं पाएंगे, 2 रखेंगे तो 4 ऐसे, ये तो मिनिमम वैल्यू इसका 4 होगा ना, तो ये 4 ले नहीं पाएंगे b स्क्वायर। तो b का वैल्यू हम स्टार्ट कर सकते हैं 3। तो मैं ऐसे केसेस ले रहा हूँ, b लेटेस्ट टेक 3। आज b लेस देन 2a, तो 3 के लिए क्या क्या आ सकता है? a एंड c क्या आ सकता है? b जब 3 होगा, ये 9 जा रहा है, तो ac का वैल्यू हम 1 रख सकते, 2 रख सकते, 3 तो रख नहीं पाएंगे। a इंटू सी का वैल्यू रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो a का वैल्यू a इंटू सी आप 1 रख सकते हो, नहीं तो 2 रख सकते हो, बट 1 रख नहीं पाएंगे। 1 रखेंगे तो ये 1 होगा, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, हम 2 रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो ये आपका 2 या 1 होगा और हो नहीं पाएगा। बट व्हाट इज योर a plus c? In this case your a plus c not greater than b, तो ये कंडीशन आपका नहीं हुआ। Now come to if b equal to 4। ये ट्रायल मेथड में हम करते हैं। if b equal to 4, तो ये 16 तक जा रहा है, तो ac आपका 4 तक आएगा। 4 आएगा मतलब आप 4 के साथ 1 रख सकते हो और कुछ नहीं आ सकता है। देन इधर मैं 3 भी रख सकता हूँ। 3 रखेंगे तो b स्क्वायर 4ac, सॉरी 16 होगा, तो ac लेस देन 4 होना चाहिए। सॉरी, ac लेस देन 4।
SC का वैल्यू 4 से कम होगा, 4 के साथ इक्वल हो जाएगा तो फिर नहीं बनेगा ना। लेस देन 4 मतलब 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, बट 1 तो नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 रखेंगे तो ये 2 एक 1 वो भी नहीं होगा। 3 रख सकते हैं, 3 रखेंगे तो ये होगा 3, ये होगा 1, क्योंकि 1 3 रख नहीं पाएंगे। ठीक है, बट व्हाट इज योर a plus c? अगेन a plus c लेस देन b, नॉट मोर देन b, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं। नाउ इफ b इक्वल टू 5 होगा तो ये 25 हुआ, तो SC का वैल्यू 6 तक जा जाएगा। SC कैन टेक अप टू 6 होगा तो यू कैन टेक 6 1, ठीक है, यू कैन टेक 5 1, you can take 4 1, you can take 4 2 तो रख नहीं पाएंगे, 3 1 और 3 2 बराबर, और 3 से कम रख नहीं पाएंगे। 3 से कम रखेंगे तो b लेस देन 12 नहीं होगा। ठीक, इफ यू टेक 6 1 तो a प्लस सी ग्रेटर देन b हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। b लेस देन 2 हो रहा है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। 5 1, इफ यू टेक 5 1 ऑल्सो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। a प्लस सी मोर देन b, एंड ये भी तीनों सेटिस्फाई हो रहा है। इफ यू टेक 4 1, तो ये a प्लस सी ग्रेटर देन b नहीं हुआ, तो दिस टू केसेस नॉट वैलिड। ये दो केसेस हम ले सकते हैं। अभी चेक करेंगे इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c, क्या होगा? 6 प्लस 10 प्लस 3 19। इसमें क्या होगा? इन दिस केस a प्लस 2b प्लस 3c, ये हो जाएगा आपका 18 15 3, यस 18। तो दिस इज द, और जो कुछ वैल्यू होगा बड़ा तो होगा ना, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c इज द 18। मजा आया क्वेश्चन? ओके, इसके ऊपर फिर नेक्स्ट हम और डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू ऑल, कुछ ट्राई करके आओ, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। वही कंसेप्ट, आज जो कंसेप्ट करा है उसके ऊपर ही करेंगे। ओके, बाय।